गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आपका ये केस लगा देती हूँ, एक सेकंड। आवाज क्या? आपका केस लगा देती हूँ सर। ठीक है ठीक है। जी इसमें मेरे माइक की आवाज़ नहीं आ रही है शायद, है ना? सर, आ रही है आपके माइक की आवाज़ वैसे। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, आपको केस दिख रहा है ना इसमें? हाँ दिख रहा है, वरना मेरे पास लिख भी लिया है मैंने तो। हाँ, आ रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ आ रहा है।
हाँ जी, आ जाओ अभी। हैं? अच्छा, वो कृतिका के कंट्रोल में है। हाँ, और दूसरा जो है ना, उसमें हम एल्कोहलिक पेनक्रेटाइटिस रखे ना अपना। हम्म। ओके। ठीक ठीक। चलो गुड ठीक आफ्टरनून सर। है, मैंने कर दिया लॉगिन आपको भी शायद। देखो। ठीक। कृतिका, हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल ना? सही, सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक ठीक। Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर, कॉल सर। Very good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. everybody. Okay, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. सर शुड आई स्टार्ट? Wait, यार, अभी कोई Okay. आया नहीं है. Is sir. anyone else from the faculty available there? I don't see anyone else has joined. Vipin sir is there, sir. अच्छा, Vipin sir. हाँ, Vipin sir is there. Wait for few more minutes. Let us Yes. see if someone else is coming. आना चाहिए आवाज।
Dr. Chahal has also joined. Hello, Vikram. Can you listen me? Sir, good afternoon. Dr. Sharma is also there. करो स्टार्ट भाई, बहुत टाइम हो जाता है बाद में. ठीक सर. Good afternoon, HOD, professors, and my colleagues and juniors. Today I'm going to present a case where a 50-year-old man presents to emergency department with vomiting and epigastric pain, which radiates through back, pain gradual in onset, coming over in last 2 days. He denies any previous episodes. He is not an regular medicine, but admits to drinking in excess of 8 cans of lager a day. He is a heavy smoker, but denies recreational drug use. He is homeless and relates his heavy drinking to depression. Should I continue for the examination finding which are written here? हाँ, पूरा सिनेरियो बता. पूरा अपन ठीक ठीक. Patient is sweaty and agitated. He says he is unable to lie flat for the examination and vomit persistently. His BP is 150 by 80 mm of Hg. Pulse is 120 beats per minute. The palpation of his abdomen reveals the tenderness in epigastrium. Abdomen is not distended and he has normal bowel sounds. Rectal examination is within normal limits. Investigations are hemoglobin 12 gram per dl, MCP 102, TLC 13,300, platelet count 3 lakhs, sodium 132, potassium 4.2, urea 5 millimole per liter, creatinine 72, serum amylase is 4,672, SGOT 30, GGT 212, serum albumin is reduced, bilirubin is normal, glucose is normal, LDH is in normal, and serum calcium is also in the normal range. So with history, what do you think? Sir, on the basis of history, seems like a case of acute pancreatitis or acute cholecystitis, maybe acute perforated peptic ulcer, and it could be mesenteric ischemia, it could be pleuritis, basal pneumonia, myocardial infarction, and sir, this much. First diagnosis. The first What diagnosis. do you think of first? First, I will think about acute pancreatitis. And second, I will think about cholecystitis and then acute perforated peptic ulcer, sir. How much is the amylase? Amylase is the 4,672. Yes. What else? What are the salient features in favor of pancreatitis? You said your first diagnosis is pancreatitis, and second you said acute cholecystitis. What makes you think that second diagnosis acute cholecystitis, and that is very close to acute pancreatitis? Sir, you can, sir. I would like to put actually acute perforated peptic ulcer in the second, or you can say then next. Now you talked about acute pancreatitis number 1. Yes, sir. So what makes you think this is acute pancreatitis? What are the salient features in favor of acute pancreatitis? So feature, first of all, sir, pain is in the epigastrium region, and he is also giving the history of alcoholic, and in the examination we have a tenderness in the epigastrium region, and
his pulse is also increased, and sir, on the basis on all these findings, and serum amylase is high, sir. What does it signify? Pulse is raised, he is sweaty, and he is agitated. Yes, sir. He's agitated and sweaty. When pulse is raised, And he he's has tachycardia. He's even having the vomiting persistently. Pulse is also raised. BP is maintained here. First, listen. I say, what does it specify? What does it say? About the pulse and BP, sir. Patient is having is raised. Yes, listen. Pulse is raised. Patient is sweaty and agitated. Yes, sir. What does it signify? Sir, it is signifying that because of the severe pain, patient is agitated and its sympathetic stimulation is going on, which is causing this sweating and the pulse rate to be increased. Or maybe the patient is maybe going in the shock, but here BP is 150/80. Does it signify anything about the degree of pancreatitis? It is not the pain only, which is the sole cause of tachycardia and everything. Does it signify the degree of pancreatitis? By history and by examination, what do you make? Is it a mild pancreatitis, or is it a moderate, or is it a very severe pancreatitis? It's a degree. Scoring. Hanji. Sir, ransom criteria, you want to know, sir, about it? Should we think? But this is. ये कौन सा what are the main causes of pancreatitis? First of all, the gallstone disease it could be, and here alcoholic, and the causes also include hyperlipidemia. Gallstone comprises of what percentage of pancreatitis? Percentage, sir. Mostly, sir, it is gallstone induced. About. अरे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो. Don't give mostly. Don't give नहीं है. Okay, sir. Percentage. Give specific answers. जो भी पूछते हैं उसका जवाब दो. What percentage of patients who have pancreatitis is because of the gallstone disease? That exact figure I don't remember. It was nearly 30%, but 8% I don't remember, sir. Exact figure. It is 30%. So 40% है semester में. 40%. So 50% है. No. Sir, ऐसा नहीं लिखा गया. ये लिखा है कि most of the pancreatitis caused by bile stones and alcohol, and combined it includes 70%. Means alcoholic and bile stone 70% causes. Together they cause 70% pancreatitis. इसमें history जो है signify होती है, तो what does it signify? It means it is alcoholic pancreatitis or gallstone pancreatitis. So history के बेस पे तो we will take, sir, both. अभी तो हम लेके चलेंगे, सर, इसको gallstone भी और alcohol को भी लेकर चलेंगे. क्यों लेकर चलोगे both? अगर gallstone pancreatitis किसी को होगा, gallstone disease किसी को होगी, तो how will the patient present? उसमें past history में कुछ होगा और? सर थोड़ी लंबी हिस्ट्री मिलेगी, सर, एक तो उसकी. In this history, take a lot of alcohol. Pancreatitis is always acute. वो तो होगा. ये तो chronic pancreatitis नहीं है. लेकिन मेरा question ये है कि if it is gallstone induced pancreatitis, तो there must be some features of gallstone disease. Gallstone disease कैसे present करती है? उसमें क्या होगी? उसमें कोई previous attacks भी होंगे ना? जी सर, previous attacks होंगे, colic की pain होगा, and मर्फी साइन मिलेगा, सर, इसमें. लेकिन यहाँ पे तो अरे और कोई है वहां पर? anyone else?
Dr. Vishnu, हाँ जी सर. आप बताइए, how will a person of gallstone disease present with, how will this history will be little different from that of The patient alcoholic will present with pancreatitis? मतलब previous history of abdominal pain उसको पहले से ही होगा clinically. So there will be intermittent episodes of abdominal pain, which हाँ will सर मतलब पहले signify भी that he would have in the complained past. of abdominal. Yes sir. Okay. और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें जो ये है, which will goes in more in favor of alcoholic pancreatitis rather than gallstone pancreatitis? तो इसमें अल्कोहलिक तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि पेशेंट का अल्कोहल कंजम्पशन पूरा उसमें लिखा है कि इतने lager 8 cans of lager a day 8 cans of lager. he drinks. So that is in more in favor of alcoholic pancreatitis, alcohol induced pancreatitis. Okay. What are other causes of pancreatitis, Dr. Vikram? Yes, sir. What are different types of different causes of pancreatitis? Other than alcohol and other than gallstone disease, yes, sir. What are the other causes of acute pancreatitis? So there are other causes like it could be due to the hyperlipidemia, and after doing ERCP, it could be in hyperparathyroidism, it could be hereditary, and it could be due to the देखो trauma. in order of ये बताओ, hyperlipidemia तो बाद में बताओ, in order of ये बताओ ना जो ज़्यादा common causes हैं. So first is gallstone induced, second is sir alcoholic, and then drug induced like steroids, and then sequence is hyperlipidemia and sir parathyroidism, and sir उसके बाद sir sequence wise नहीं पता sir बाकी. अरे more common क्या हो सकता है? Traumatic होगा पहले. Traumatic. You have omitted trauma. You have omitted ERCP. You have omitted any surgery. Cystic fibrosis. कौन? Who is speaking? कादिर. जी सर. आप बोल रहे थे कुछ? So cystic fibrosis is a serious condition that affects your lung, liver, and pancreas. Okay. In viral infections also like mumps and mycoplasma. Yes. Yes. What is pancreatitis? How do you define acute pancreatitis, Dr. Vikram? It's a reversible injury to the parenchyma of the pancreas, and क्या? so it is a reversible injury in acute pancreatitis to the progressive and destruction of the pancreatic parenchyma. What do you mean by reversible? So in acute it's reversible, in chronic it's irreversible injury. Acute अगर किसी को severe हो वो सब बचते हैं क्या? वो सब reverse हो जाते हैं? Have you heard of and seen severe acute hemorrhagic pancreatitis? Yes. I have seen one. There was a doctor colleague when I was in Srinagar doing my MBBS. He died. We could not save him. It was an acute hemorrhagic necrotizing pancreatitis. Dr. Sunil Tiwari is ready with an answer. He is smiling on all of us. हाँ जी, सुनील तिवारी जी बोलिए, जवाब बोलिए. Sir, it is acute inflammation of pancreas without any evidence of infection, and associated with the pain relating to back and raised serum enzymes, lipase and amylase, with no signs of with no histological features of fibrosis. So it's an acute sterile inflammation of pancreas. It is sterile.
Vikram, how will you exclude peptic perforation in this patient? पेप्टिक जो है Patient is having severe pain. Patient pulse BP are almost pulse is almost raised. MI is also increased in peptic perforation. History of alcohol. How can you exclude? Sir, on the basis of sir history, the pain usually in the peptic ulcer, which it also radiates to back, and along with it also radiate to the right iliac fossa region, because Here when also it's radiating to back. Here also it's Yes, sir. radiating to back. Then राइट ईलियक फोसा में क्यों यू सेड राइट ईलियक फोसा क्यों जाएगा राइट ईलियक फोसा? सर उसमें जो कंटेंट है उसके वो ग्रेविटेट डाउन करते हैं when the patient is asked to sit, and हिस्ट्री में आपको बहुत एक्यूट मिलेगा, इसमें 2 दिन की हिस्ट्री मिल रही है पेन की. Sir, in case of acid peptic disease, there will be history of on and off pain. There will be not that much short history. In this case, patient have just 1 or 2 days. But in case of peptic ulcer disease, there will be history of many times peptic ulcer presents as perforation. Many times. Yes. No history, no previous history of pain. Yes, but this presents as peptic perforation. What are different stages of perforated peptic ulcer? Pancreatitis. और सर इसमें यस सर क्या स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस थ्रू व्हिच द पेशेंट passes in perforated peptic ulcer? विष्णु कल साहब पूछ रहे हैं उसका, हाँ, whatever Dr. Kaul is asking, answer that. What are the stages of peptic ulcer? तो स्टेजेस नहीं पता सो पेप्टिक अल्सर. सुनील आप बताइए सुनील डिफरेंट फेजेस कौन से हो जाते हैं पेप्टिक अल्सर के? सर पेरिटोनाइटिस के स्टेजेस पूछ रहे हैं सर या अल्सर के? सर हाँ it will create peritonitis or it will cause peritonitis only. Sir, patient will be acute first stage will be there will be severe pain, and there will be severe pain and release of gastric contents around, and there will be inflammation. But later on, because of the initially pulse BP. So first stage is stage of pain. Peritonitis. Yes, sir. Pain. Yes, sir. Then at first stage BP pulse, all things will be maintained. But as time proceeds, that is stage of pain. Patient will have severe pain. This is stage of itis. Here, peritonitis has 3 stages. This, what you are describing is the stage of chemical peritonitis. Yes, sir. Then stage of chemical peritonitis because of chemical. Second stage बताइए. What is the second stage? Stage of peritonitis में था second stage में. Then peritonitis it will cause. पहले आपने कहा patient will have pain. Stage 2. जब वो फट गया, then there will be leakage of this. That will be stage of chemical peritonitis. Because of chemical peritonitis, there will be release of fluids inside the abdominal cavity, which will dilute, and the symptoms will be partially get relieved, and patient will feel partially better. But because of release of blood volume will be decreased, so patient will if not active resuscitation is done, patient will be having तिवारी एग्जाम में तुमसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा 3 स्टेजेस, तो इतने लंबी तुम बताओगे क्या?
और तुमसे 3 नाम पूछे जा रहे हैं। 3 नाम पूछे जा रहे हैं, वो आप नहीं बता पा रहे इतना हैं। लंबा चौड़ा तुम पता नहीं क्या कहानी बता रहे हो। What are the 3 stages of peritonitis? ये तो एक्चुअली दे आर डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग एंड दे आर नॉट। Any other 3 third year? स्टेजेस के नाम बताओ। Diffuse peritonitis. Second स्टेज year? ऑफ कैम इसका मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। सर प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, कोई पेरिटोनाइटिस। सिटेशन पढ़ रहा बीपी क्या? है लोगों में से। तिवारी नाम बताओ तीनों कौन स्टेजेस बोल रहा है? कादिर बोलिए, कादिर। Sir, अपना irritation, वीडियो ऑन कर दो reaction. कादिर। कादिर इज हियर। कादिर वीडियो ऑन करिए अपना। हाँ जी सर, बोलिए ऑन आप। कर दिया सर। हाँ सर, बताइए आप। irritation, reaction and diffuse peritonitis. तिवारी नाम बताओगे 3 स्टेजेस का? Sir, stage of pain, कुछ chemical नहीं है, बेकार peritonitis. बातें हैं। स्टेज ऑफ केमिकल पेरिटोनाइटिस, स्टेज ऑफ डाइल्यूशन, स्टेज ऑफ बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, 3 स्टेजेस हैं। चलो आगे चलो। क्या होगा स्टेज ऑफ केमिकल पेरिटोनाइटिस में? पहले how will the patient present? उस टाइम क्या होगा? उस that during that brief period when there is perforation, there is leakage of these acid and enzymes into the general peritoneal cavity. What will happen? Patient will have a pain, sir, and it will elicit the peritonitis. उसमें वो होने लगेगा सर शुरुआत में। अरे पहले कहाँ पेरिटोनाइटिस होने लगेगा? उसको पेन को उस टाइम क्या होगा? सीवियर पेन होगा और क्या होगा? सीवियर पेन होगा। Severe pain hoga, starts in upper quadrant. Features of shock will be there. Shock There like will be tenderness and muscle gardening. And obliteration of liver dullness. Yes, these are the three or four points in the chemical peritonitis stage. And the second stage is the stage of peritoneal irritation. जो peritoneal irritation को वो जो अभी तिवारी ने बताया कि that patient will feel better because of the dilution of leaked fluid. And the third stage is bacterial peritonitis. इसमें सारे features of peritonitis के होंगे. इतनी 3 आप stages को अगर peritonitis की you don't know, then this is not good. आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं इसका मतलब. ये तो बड़ी बेसिक है. कितने बार डिस्कस हो चुका है पेरिटोनाइटिस, आप पेशेंट भी देखते हैं. मतलब केस सिनेरियो के हिसाब से ही नहीं पूछा जाएगा. ही विल जब आपको आप डोंट फोकस योरसेल्फ ऑन ओनली ऑन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस. पीपल विल नॉट आस्क यू ओनली पेनक्रेटाइटिस एंड नथिंग एल्स. और क्या कभी पेनक्रेटाइटिस के बारे में पूछेंगे नहीं. दे विल गो टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड आस्क यू अदर थिंग्स. यस, दिस इज नॉट अंडरग्रेजुएट, दिस you will appear in postgraduate. अब ये पेनक्रेटाइटिस है तो हाउ विल यू ये पेनक्रेटाइटिस में क्या एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स मिलेंगे आपको? सर patient will not be able to sit मतलब lie flat because of क्या क्या examination में मतलब he will not be able to lie flat and उसको and he will be giving tenderness in the epigastric region and on the back and the costo that costospine. So that is what you are talking about is more of history rather than examination, symptoms rather than examination findings. What will you find? What are different findings in acute pancreatitis other than epigastric tenderness and what else will you have? What is the Turner sign? Dr. Vikram. जी सर. Dr. Vikram. Great yes sir, yes sir. sign is please discoloration of flanks, sir. अरे सुनील एक मिनट रुको. डॉक्टर विक्रम. यस सर. ये बताओ कितनी किताबें खुली रखी हैं तुम्हारे सामने? सर किताबें तो इधर हैं. नहीं
आपने causes बिल्कुल देख के बताएं. You are not seeing on the screen. You are continuously trying to search something in your paper or in your notes. ये सर पेपर में Be मैंने honest. लिखा है, पेपर में मैंने लिखा है. हाँ तो वो पेपर पे कुछ आपने थ्योरी तैयारी लिखी हुई करा है ना, वहीं से देख देख के बोल रहे हो. नहीं सर. डोंट डू दिस. इसको एक तरफ को रखो, इसको एक तरफ को रखो. ट्राई टू टेल योरसेल्फ, तभी तुम्हारा कुछ फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा. ऐसे जो भी चीज पूछी जा रही है, यू विल नॉट. मैं देख रहा हूँ ना कंटिन्यूअस मूवमेंट पे ऑनलाइन. इट इज वेरी इजी. वेयर यू आर लुकिंग, you are not looking on the screen, you are continuously turning your pages, you are continuously seeing down, so you are not concentrating. Try to give the answer yourself, only then you will be able to know what are your weakness. Otherwise you will not be able to know the weaknesses. Try to do this. अरे क्या क्या साइंस होंगे पैनक्रेटाइटिस में, क्या क्या हो सकता है? What can you find? So first of all, when the patient will come, he will इसके जनरल एग्जामिनेशन में आपके जो वाइटल्स उसके गड़बड़ होंगे सर. पल्स इंक्रीज, बीपी में बी फॉलिंग, and then we will go for the systemic examination and he so general physical examination में क्या क्या होगा? टैकिकार्डिया, टैकेप्निया होगा. टैकेप्निया, yes sir. टैकेप्निया हो सकता है. Then there yes, can be BP, low BP, yes, if sir. patient presents in shock. Patient yes, may be sir. sweating and pulse may be feeble. ये हो गया एक चीज. फिर examination of the abdomen बताओ. Sir, in the inspection sir we will have इंस्पेक्शन नहीं, जनरल बताओ मुझे. मुझे इंस्पेक्शन पल्पेशन ये नहीं चाहिए मुझे. आप जनरल बताइए क्या होगा. सर इसके पुलन साइन में भी प्रेजेंट, ग्रेट टर्नर साइन में भी प्रेजेंट. अरे भैया वो तो बात से पहले एब्डोमेन में कुछ होगा ना. क्या होती है कलन साइन, क्या होती है ग्रेट टर्नर साइन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर इंस्पेक्शन और पैल्पेशन इस तरह से. अरे कलन साइंस क्या होती है? अब आपने कलन साइन सर एम्ब्लाइकस, अराउंड एम्ब्लाइकस के चारों तरफ, अराउंड एम्ब्लाइकस देयर मे बी sir discoloration there, hyperpigmentation may be there, and in the great turner sign it will be in around the flanks sir. This is hyperpigmentation or this is because of what? Hemorrhage. अरे इसको बोल दीजिए ना. ये तो वहां से पढ़ के बोल रहा है. क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ सर. अरे बताओ ना, मेरी तरफ देख के बताओ आप. हाँ पढ़ के. स्क्रीन. हाँ तो पढ़ के बोल रहा है. क्या होता है? नहीं सर, पढ़ने के लिए सर मैंने ये बुक्स इधर रखी हुई हैं सर, उधर नहीं रखी हैं. अपने पास नहीं है सामने. उधर को देखूंगा तो सर उधर. अब कलन साइन क्या होती है, क्या होता है? Cullen sign में सर it will be discoloration around the umbilicus. और किस डिजीज में मिलती है ये? This was basically described for some other disease initially. Yes sir, it was some related to ectopic pregnancy rupture sir, इस तरह का maybe. हाँ यही था शायद. तो होता क्या है इसमें? इसमें सर जो भी हमारे जो सीक्रेशंस आपके पैनक्रियास से आपके जो एंजाइम्स हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज द ट्रेवलिंग, एंड उसके साथ जो टिश्यूज और इसका जो पूरा ये बना सर, वो मतलब यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं. तिवारी जी क्या होता है कलन साइन? Sir, if any cause there is retroperitoneal hemorrhage, that retroperitoneal blood comes along with the facial planes and appears as a petechiae, and in the facial planes that appears red or bluish discoloration in flanks and umbilicus. Yes sir. रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज में ही होगा. हाँ सर. इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज है तो इंट्रापेरिटोनियल भी होता है. Sir, most common retroperitoneal hemorrhage का character है sir. और कहाँ ये होगी? कलन साइन इज अराउंड द umbilicus. और कहाँ पर होता है? व्हाट इज ग्रेट टर्नर साइन? Flanks sir. फ्लैंक्स में मिलता है ग्रेट टर्नर साइन. इन एडिशन टू दैट क्या बाकी होता है? हाउ विल द एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन क्या मिलेगा? और अरे लिखा भी है इसमें, टेंडरनेस होगी एपिगैस्ट्रियम में. व्हाट विल हैपन टू द होल ऑफ द एब्डोमेन?
पहले it will try to be localized, but suppose it will present, it can be a whole, the abdomen can be tender. Cardiac rigidity. If it is leaking into the general peritoneal cavity, if it is not a contained disease. पैनक्रियास की लोकेशन बताओ, कहां पर होता है पैनक्रियास? सर रेट्रोपेरिटोनियल है सर, ये आपके हाँ, but surface marking. I am not asking you embryology this. I am asking you a surface marking. Abdomen में कहां पर होगा? सर it will be at ये आपका T5 L5 लेवल नहीं, T5 के पीछे या उधर T5 के लेवल पर। एब्डोमेन के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? फिर वही सवाल यार, क्या सर it will be in epigastrium region सर। epigastrium में होता है? होते हैं सर 9 quadrants are there। पहले ये जब there are 9 quadrants sir। बताइए नाम बताइए। Regions are 9। 9 quadrants होते हैं? 4 quadrants। अरे इसको बोलने 4 दो quadrants and 9 regions। इसको बोलने दो। विक्रम जी बोलिए। जी सर। फिर वही बात, 9 quadrants होते हैं? Yes question है यार। ये तो कम से कम 200 बारी वहां पर डिस्कस किया होगा, और इसी क्वेश्चन पर तो हमारे उदित जी फेल हो गए थे। क्या हुआ तुम लोगों को? वी आर बैक टू स्क्वायर जीरो। We thought कि probably we don't have to discuss quadrants and regions this time. बताओ यार डॉक्टर विष्णु। So there are 9 regions and 4 quadrants. Upgrade his knowledge. हाँ? So there are 4 quadrants and 9 regions. The 9 regions are पहले 4 quadrants बताओ, 4 quadrants कौन-कौन होते हैं? And what are the dividing lines? So line मतलब at the level of umbilicus, a midline and the transverse line, imaginary transverse line. Okay. Though they will divide it into 4 quadrants, and the 9 regions will be divided. अरे 9 quadrants, 4 quadrants बताओ ना पहले, कौन-कौन सा होता है? कौन से 4 quadrants होते हैं? नाम क्या हुआ लोगों को आज? यार क्या है? राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर एंड लेफ्ट लोअर। आज क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोग सोए तो नहीं हो आज? नींद तो नहीं आ रही है? Sir, upper left, upper right, lower left, or you are all depressed because this COVID is COVID depression। हाँ सर, this is COVID depression। ये तो बिल्कुल ये बोल ही नहीं पा रहे आज। Sir, upper left, lower left and lower right। अब बताओ रीजन। ऋचा, साक्षी, ये लोग कहाँ हैं? सर यही है सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? बोला नहीं जाता, हाथ नहीं उठाया जाता। इतने बेसिक क्वेश्चंस भी आप लोग नहीं बना पा रहे। कितने रीजन है ऋचा? कितने रीजन है? ऋचा बोलो। सर 9 रीजन्स हैं सर। बताइए, और डिवाइडिंग लाइंस बताइए। डिवाइडिंग लाइंस बताइए। So at the level of iliac fossa, a line joining both the iliac fossa. पहले वर्टिकल। What do you mean by iliac fossa? कहाँ लिखा है iliac fossa? Iliac fossa कैसा है? Iliac fossa is one of the region. How do you say iliac fossa at the level of iliac fossa? क्या बोल रहे हो? साक्षी, कहाँ है साक्षी? साक्षी? Is she there? कहाँ हो? मुरादाबाद हो, बनारस में? ऑन कर दो ये। ऑन है। Where are you? Where are you? मुरादाबाद। आप तो दिख ही नहीं रहे हो। मुरादाबाद। मुरादाबाद। Are you listening everything? Every discussion? आप तो दिख ही नहीं रहे हो साक्षी। Now tell me the. Now tell the all the regions and quadrants. So there are 9.
and they हाँ are आप dividing. लिख रहे हो. There are 9 regions. transverse lines and what are two Vertically, it is vertical a lines? mid-clavicular line. पहले वर्टिकल लाइन बताइए या Vertically, ट्रांसवर्स? sir, from वर्टिकल लाइन बताओ. mid-clavicular अच्छा line वर्टिकल both लाइन side, बताओ. and जैसे line जो होती है सर वो highest. पहले वर्टिकल लाइन बताओ. उनके दो वो तो इसने पॉइंट बता बताओ दिया जो सर. आप ये ज्वाइन करेंगे. मिड क्लेविकुलर लाइन इसने बता दी. बता दिया. अब नीचे कहाँ ज्वाइन करेंगे मिड क्लेविकुलर लाइन? Mid-inguinal point. Sir, at the टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज से सर मीडिंग वाले पॉइंट पे वर्टिकल लाइन जोन करेगी एंड ट्रांसपाइलोरिक और क्या 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 सर वो जो वर्टिकल लाइन है आपकी 9th कोस्टल कार्टिलेज से होते हुए नीचे आपकी मीडिंग वाले पॉइंट पे वो करेगी. और सर जो है ट्रांसपाइलोरिक लाइन जो है L1 लेवल से पास करती है और सर ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन ASIS के और सर L5 लेवल से L1 लेवल L1 लेवल क्या होती है? L1 लेवल पीछे से देखोगे क्या? एब्डोमेन पर बताओ कौन सा ये पासेस थ्रू व्हाट? So lower coastal cartilage. Halfway between halfway between the umbilicus to एक एक करके बोलो. sternum. तुम लोग सब कंफ्यूज हो रहे हो और हम लोगों को भी सुनने में नहीं आ रहा है. साक्षी बोलो. बोलो साक्षी. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लियर करके बोलिए. एक होता है सर ट्रांसपाइलोरिक जो कि सर पाइलोरस के थ्रू पास होता है. वर्टिकल लाइन. Again you said pylorus. Pylorus कहाँ पर है? सरफेस मार्किंग बताइए एब्डोमेन पर. आपके एब्डोमेन पर मुझे कैसे अंदर से आपकी इतनी ये है नजर तेज कि आप बाहर से ही देखते हो पाइलोरस कहाँ पड़ता है? बाहर से L1 देख लेंगे, बाहर से पाइलोरस देख लेंगे. ट्रांसपाइलोरिक तो आपने पढ़ लिया. व्हाट इज ट्रांसपाइलोरिक? इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? सरफेस मार्किंग बताइए ना. Mid between G sternum to umbilicus. Transverse line joining. सुनील बोलो. तिवारी जी जरा आप बताइए. आप कहाँ हो? सर यस सर. हाँ बताइए. आप थोड़ा सा रोशनी डालिए. Sir, anteriorly it roughly corresponds the midpoint between umbilicus and epigastric notch. Posteriorly it corresponds to L1 body of L1 vertebra. In mid it corresponds to pyloric antrum, sir. Okay. Yes. आंसर वो जो बताई थी जो नीचे वाली लाइन है that is transtubercle plane, that is iliac tubercle sir. Which tubercle? Anterior superior or anterior posterior? Sir ये lateral tubercle होता है 5 centimeter behind the anterior superior iliac spine. Anterior superior iliac spine sir. It is iliac tubercle. Anterior. अच्छा फिर ये 9 regions कौन कौन से बन गए? रिचा कौन कौन से 9 regions बन गए? सर ऊपर से आप शुरू करेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड फिर बीच में राइट लंबर, फिर अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर एंड देन राइट इलियाक रीजन, हाइपोगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट इलियाक रीजन. सर अब जो पैनक्रियाज है ये बेसिकली ये किस रीजन में होता है? सर predominantly in the epigastric region and in the epigastric region, sir. एपिगैस्ट्रिक में होता है कि अम्बिलिकल रीजन में? लेफ्ट हेप्टम अम्बिलिकल रीजन में. सर एपिगैस्ट्रियम एंड अम्बिलिकल रीजन के बीच में कवर होता मैंने है. पूछा प्रेडोमिनेटली किस रीजन में होगा? In the umbilical region. अम्बिलिकल रीजन सर. आप लोग आज कुछ नहीं पढ़े हुए हो. आप लोगों ने किसी ने you have been most of this of you must have been sleeping. लगता है सब लोग उधर पटेल होने जा रहे हैं. This is basically because of the pandemic और किस वजह से हो रहा है ये? क्या उधर पटेल पर देख लिया था क्या किसी ने अपने पे? कोई फायदा नहीं है डॉक्टर हरप्रीत. डॉक्टर हरप्रीत. हाँ जी सर बताएं सर. अरे पूछो ना. आप पूछो. सब पूछ लो कुछ. अच्छा तिवारी फॉक्स साइन क्या होता है?
फॉक्स साइन अगर ये इंग्विनल रीजन में सर कहाँ पे? सर इंग्विनल सर राइट हाँ इंग्विनल रीजन में सर जैसे सर कलन साइन और ये ग्रेट अंडर साइन होता, ऐसे कलन साइन अगर सब फेशियल प्लेन में हेमरेज होता तो वहां पे जब प्रेजेंट होता तो सर उसको कहते हैं सर बेसिकली रूट ऑफ पेनिस पे अगर डिस्कलरेशन हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ सीपेज ऑफ ब्लड, एंड इट इज फॉक्स साइन। ठीक है, अम्बिलिकस इज कलन्स, फ्लैंक इज ग्रे टर्नर, और रूट ऑफ पेनिस इज फॉक्स साइन। अच्छा तिवारी, अगर पेशेंट तुम्हारे पास अगर 72 Dr. आवर्स के Harpreet, बाद आता है सर। Dr. Harpreet, सर don't ask only Tiwari. Tiwari will answer most of the questions. You ask, there are so many other people. ठीक है सर, अगर विष्णु को पेशेंट पूछो, 72 साक्षी को, ऋचा को पूछो, so that अगर पेशेंट 72 आवर्स के बाद आया हमारे पास, प्रेजेंट किया है, तो क्या कराओगे, कैसे डायग्नोस करोगे कि कौन सा एंजाइम कराओगे, अमाइलेज कराओगे कि लाइपेज कराओगे? सारे सारे क्वेश्चन सेमिनार में 72 आवर्स लाइपेज 10 करेंगे मिनट सर। सारे क्वेश्चन सेमिनार में बताए जा चुके हैं, कुछ नया नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए सबका आंसर दो आप लोग। चलो हाँ तिवारी बताओ। इनिशियली 48 आवर्स तक अमाइलेज सर इंक्रीज रहेगा 3 फोल्ड, एंड आफ्टर 48 आवर्स अमाइलेज का लेवल डिक्रीज होगा एंड लाइपेज का लेवल कांस्टेंटली इंक्रीज रहेगा सर। सो अगर बहुत 72 आवर्स बढ़िया, के बाद देखना है तो बहुत वी बढ़िया, विल बी बहुत चेकिंग फॉर बढ़िया। लाइपेज सर। तो अब हम सिर्फ एक अमाइलेज की ही बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 72 घंटे के बाद अमाइलेज का लेवल कम होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर 6 डेज के बाद हम 7th डे पे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के केस में 7th डे पे हम अमाइलेज, सीरम अमाइलेज लेवल कराते हैं, क्यों कराते हैं? अब हम सिर्फ अमाइलेज की बात करेंगे, 7th डे पे अमाइलेज लेवल क्यों कराते हैं? कोई भी, ऋचा, प्रोग्रेस चेक करने के लिए, अगर इनिशियली इंक्रीज रहा और फिर बाद में नहीं फिट एज डिक्रीज तो उसका नहीं, अगर इंक्रीज है माइलेज लेवल, अभी भी 3 फोल्ड इंक्रीज है, 7th डे पे हम यूजली पैनक्रेटाइटिस के 7th डे पे हम कराते हैं, माइलेज लेवल अभी भी इंक्रीज है, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि पेशेंट हैव रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। हाँ, परसिस्टेंस ऑफ हाइपरअमाइलेजेमिया मोर देन 6 डेज, जो सेबेस्टिन में मेन बोर्ड्स में लिखा है, परसिस्टेंस ऑफ हाइपरअमाइलेजेमिया फॉर मोर देन 6 डेज मींस पेशेंट इज गोइंग इनटू कॉम्प्लिकेशन। अच्छा तिवारी, अमाइलेज लेवल और कहाँ बढ़ सकता है हाइपरअमाइलेजेमिया? Richa, you tie yourself into knots. डॉक्टर हरप्रीत ने आपको स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा कि 7 डेज पर आपके पास पेशेंट आता है तो आप क्या टेस्ट, विच विल बी मोर स्पेसिफिक टेस्ट? आपने अमाइलेज से शुरू किया, which lipase? Again I will ask you, which lipase? It will be serum lipase or urinary lipase? सर सीरम लाइपेज। यूरिनरी लाइपेज कब कराओगे? यूरिनरी लाइपेज का ग्राफ कब स्टार्ट होता है? 3 days, 7 days, 13 days, 21 days. There are 4 graphs for each enzyme. तो यूरिनरी लाइपेज का टाइम कब आता है? आफ्टर 7 days, 72 आवर्स के बाद सर वो यूरिन में सीक्रेट आपका होने लगता है 48 आवर्स से 72 आवर्स में, तो इट कम्स टू नॉर्मल लेवल इन 72 आवर्स। नॉर्मल लेवल पर आ जाता है यूरिन लाइपेज, सीरम लाइपेज सर, तो यूरिन में हम कह रहा है एक्सक्रीशन उसका होगा। हाँ, तो यूरिनरी लाइपेज कब तक करा सकते हो? इट इज ए प्रोग्नोस्टिक मार्कर टिल हाउ मेनी डेज? नेक्स्ट, अगर 72 आवर्स पर डॉक्टर हरप्रीत ने पूछा पेशेंट तुम्हारे पास है, पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स, देन व्हाट यू विल डू? पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल CECT करेंगे। पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल्स में क्या क्या आता है सर? 3 phases में करते हैं सर। वन इज नॉन कॉन्ट्रास्ट, अनदर वन इज आर्टेरियल फेज, अनदर वन इज लेट आर्टेरियल और पोर्टल वेनस फेज सर। तीनों का क्या सिग्निफिकेंस है सर? आर्टेरियल सर नॉन कॉन्ट्रास्ट में सर हम पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड ये सर देख सकते हैं, और
आर्टेरियल फेज में सर अगर इस्कीमिक डेवलप हो रहा है या नेक्रोसिस डेवलप हो रही है सर, ये देख सकते हैं। और सर वीनस डिलेड फेज में, सर डिलेड फेज का नहीं पता सर। ये तीनों का बेल्थेजर स्कोरिंग से डायरेक्ट रिलेशन है। सीटी सीवीटी इंडेक्स में आर्टेरियल, वेनस एंड नॉन कंट्रास्ट तीनों का यूज है। ओके चलो। तिवारी, हम अभी अमाइलेज की बात कर रहे थे। अमाइलेज Yes, और sir. कहाँ बढ़ता है हमारी बॉडी में? डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हाइपर अमाइलेजीमिया। नहीं, तिवारी नहीं बताएगा, ये बाकी लोग बताएंगे। विष्णु बताएगा, तिवारी तुम रहने दो क्योंकि सेमिनार में पूछा जा चुका है। विष्णु आप बताओ, नॉन पैनक्रियाटिक सोर्स ऑफ अमाइलेज। आंसर दिया जा चुका है। सर मेसेंट्रिक इस्कीमा में बढ़ता है। अपने it even increases in ectopic pregnancy. Ectopic या ruptured ectopic? Ruptured ectopic pregnancy, sir. Ruptured ectopic. more important बताओ यार, जो जनरल सर्जिकल कॉजेज हैं हमारे। पेप्टिक अल्सर, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर आपने किया, और किस में हो सकता है? सर परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, मेसेंट्रिक इस्कीमिया, या तीसरा ये बताया था रप्चर्ड एक्टोपिक, intestinal obstruction, sir, intestinal obstruction भी। और पैरोटाइटिस में होगा। पैरोटिड ग्लैंड का अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो पैरोटाइटिस में अमाइलेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पैरोटाइटिस, ठीक है, पैरोटाइटिस में बढ़ सकता है। देन उसके अलावा रप्चर्ड एक्टोपिक हो गया, जो परफोरेशन हो गया। देन इसके अलावा और मेसेंट्रिक इस्कीमिया हो गया, सीवियर बर्न्स, क्या होगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज और ये सारे अमाइलेज में कोई डिफरेंस होता है? हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीस टू? क्या सर ऐसे हम लोग कराते नहीं, बट दे आर डिफरेंट आइसोफॉर्म्स। तो जो पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक आइसोफॉर्म है सर, वो मोस्ट सेंसिटिव है। बट सर वो डायग्नोस्टिक के लिए हम कराते नहीं क्योंकि वो हर लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है सर। तो आइसो एंजाइम्स में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ओके। So what is the role of MRI in pancreatitis? बताइए रिचा। सर एक्सटेंट ऑफ नेक्रोसिस देखने के लिए MRI करते हैं सर। Which is a better this investigation, MRI or CT scan? Sir CT, sir. CT is the better indicator, sir. MRI costly भी होता है सर, and also a patient is if he is in sepsis तो MRI कराना और मुश्किल होगा सर। तो CT is if you have to see the necrosis, then which is the best modality for necrotic pancreatitis? So for necrotic pancreatitis, MRI sir. MRI is better sir. Okay. If you want to see the evidence of bacterial infection, then which modality is more? Sir, CT sir. CT. Trapped air we have to see, that is only with the CT. CT sir. CT sir. Coming back to Ranson's criteria, Dr. Vikram. Yes sir. Criteria बता दो at the time of admission. Sir, age greater than 55 years and TLC greater than 15,000 and temperature 38 degrees Celsius से greater or less than 34 degrees Celsius rectal temperature and temperature. Age 55 years sir, greater than। और कुछ एंजाइम भी हैं, कुछ और भी पैरामीटर्स हैं, LDH है कुछ। LDH 350। और SGOT greater than 200 and LDH greater than 350। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कितने दिन के लिए एलिजिबिलिटी है? इस क्राइटेरिया को कब तक अप्लाई कर सकते हैं?
48 hours. Till 48 hours. 48 hours, 2 days. After that, what you will do? अगर उसके बाद देखना है पेशेंट आईसीयू में पहुंच गया, फिर कौन सा स्केलिंग यूज करोगे? Hematocrit drop. Hematocrit drop, blood urea nitrogen, serum calcium. What are the scorings you know which can be applicable to ICU patient of acute pancreatitis? डॉक्टर सिंह का पूछने का मतलब ये है कि इन एडिशन टू रेंसन्स क्राइटेरिया व्हाट आर द अदर स्कोरिंग सिस्टम्स by which you know the severity and prognosis of the disease. Apache score and Atlanta scoring. Apache scoring. बताइए. Apache score कितना होगा जब तुम कहोगे कि पेशेंट सीरियस है? Apache scoring कितनी होनी चाहिए? So more than 8 अगर होगा तो severe pancreatitis होगा सर. अटलांटा से कैसे क्लासिफाई करते हो? सर एटलांटा का 3 क्राइटेरिया होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. माइल्ड में नो ऑर्गन डिस्फंक्शन, नो कॉम्प्लिकेशंस. मॉडरेट में ऑर्गन फेलियर विच ट्रांजिएंट ऑर्गन फेलियर 48 आवर्स में वो ठीक हो जाएगा, एंड नो कॉम्प्लिकेशंस अगेन. एंड थर्ड सिवियर में कॉम्प्लिकेशंस होंगे एंड ऑर्गन फेलियर रहेगा सर. Suppose there is a स्वाट्स उन्होंने चेक किया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें उन्होंने 4 में डिवाइड है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड क्रिटिकल पैनक्रेटिस. सर तिवारी जी आपका ये जो है ना इंटरनेट कनेक्शन ऐसे हो रहा है कि जैसे आप कविता पढ़ रहे हो. आपका इंटरनेट कनेक्शन इज वीक, उसमें वो वॉइस गेट्स ब्रोकन. अच्छा, कोई बेल्थेजर स्कोरिंग बता सकता है? एनीबॉडी? सीटी सीवियरिटी इंडेक्स कोई बता सकता है? लास्ट टाइम भी पूछा था, जाके देखा किसी ने? देखा था, याद नहीं हुआ सर. आपके सीटी में इंप्रेशन दिखा है, रेडियोलॉजिस्ट ने लिख दिया, आपको कैसे पता लगेगा सीवियर है कि नहीं है अगर वो सीटी सीवियरिटी इंडेक्स नहीं लिखता है तो? अगर उन्होंने बताया कि देखिए अब ऐसे चलिए, फ्लूइड कलेक्शन, नेक्रोटिक एरियाज, फैट स्ट्रैंडिंग्स, पेरेन्काइमल, पेरीपेनक्रेटिक कलेक्शन, आप बताइए. सर अगर नेक्रोसिस है तो सर सीवियर है. आप लोग जाके भी नहीं देखते हो सर? इसका स्कोरिंग कितने में से होता है टोटल? व्हाट इज द टोटल स्कोर? टोटल 10 स्कोरिंग होती है सर इसमें. हाँ, 10 के बाद वो किस को कितना किया दिया जाता है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या स्कोरिंग? निक्रोसिस वाले बेसिस पे सर 0% में 0 है, 33% पर सर 1 है, 50% पर 2 है, एंड ग्रेटर देन 50% पर 3 या 4 ऐसे था. एंड सर देन इसके ऊपर जब नॉर्मल जो पेनक्रियाज विजिबल है तो 0 है स्कोरिंग. अगर उसमें एडिमा है देन इट वाज 1, एंड इट वाज अगर उसमें साइट में मतलब पेरीपेनक्रेटिक कलेक्शन है तो 2 था. सर इस तरह से था, पूरा तरह मुझे याद नहीं हुआ सर, देखा. तो कितने में तुम सीरियस मानोगे? सीवियरिटी कब लोगे? सर अगर 7 या 7 से 7 to 10 होता है तो उसे सिवियर पैंक्रेatitis बोलता है. Above 6 it is serious. Above 6 it is serious. ठीक है. Above 6 yes. ये स्कोरिंग सिस्टम में हर एक फाइंडिंग को यू गिव पॉइंट्स 0, 1 and 2, and on the basis of that you have the total of 10. अगर किसी को भी 6 and 6 से above है then it is considered to be a severe acute pancreatitis. और जो कंपोनेंट्स हैं वो तो बताए हैं अभी डॉक्टर एनके सिंह ने. नेक्रोसिस बताया, फ्लूइड ये बताया,
एयर का बताया। तो डॉक्टर विक्रम कैसे मैनेज करते हैं? तो मैनेजमेंट में सर फर्स्ट ऑफ ऑल लोग इसके आरटी इंसर्शन करेंगे और सर शॉक को पहले मैनेज करेंगे सर, और देन आरटी इंसर्शन। सर शॉक, if patient is going in the shock, then we manage the shock first, and इसके बाद इसमें RT insertion करेंगे, and then we will go for the sir investigations, and if it is infected, then we will introduce RT आपने बताया और बाकी चीजें बताई नहीं आपने। सर RT insertion and pain का relief सर। RT is not all that important. There is something else which is important. आपके पास पेशेंट आता है who is cold, clammy है, and he has tachycardia, he is sweating. तो फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे। शॉक को कैसे मैनेज करते हैं? सर फ्लूइड रिससिटेशन, IV फ्लूइड्स देंगे, रिससिटेशन। कितना फ्लूइड दे दोगे इसमें? What is fluid challenge? What is fluid challenge? Fluid challenge in pancreatitis. सर 1 लीटर ऑफ NS सर देंगे, अगर BP नॉर्मल आ गया तो और 10 मिनट तक रुका रहा तो सर इट्स नॉर्मल, अदरवाइज वी विल थिंक मे बी सम परफोरेशन सर। अरे भैया, दिस इज fluid challenge diagnosed. This is now a diagnosed case of acute pancreatitis. You know it. It is pancreatitis. This is not because of the myocardial infarction. So आपको कितना fluid दे दोगे इसमें? 2 liters. सर फ्लूइड चैलेंज हम लोग ये देखते हैं, सर फ्लूइड चैलेंज हम लोग ये देखते हैं कि जो शॉक है वो रिस्पॉन्सिव है या नॉन रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन? रेट ऑफ किस रेट से दोगे, कितना अमाउंट दोगे, कितने ड्यूरेशन में दोगे? ट्रीटमेंट इज जस्ट लाइक बर्न पेशेंट। ये मत सोचो पेनक्रेटाइटिस माइल्ड चीज है। सर 1 लीटर इन 10 मिनट्स में शुरुआत में देंगे कि अगर वो स्टेबल नहीं होता है तो, एंड उसके बाद 2.5 लीटर हमको ओवर 24 आवर्स में। भैया इसमें 6, 8, 10 लीटर फ्लूइड जाता है। क्या तुम कहते हो 1 लीटर और 2.5 लीटर? सर 2 लीटर देना है विद इन 1 आवर में पेशेंट को। हाँ जी बताइए तिवारी जी, जोर से बताइए। सर पेशेंट को 2 लीटर देना है विद इन आवर में। इसके बाद पेशेंट को यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट को यूरिन आउटपुट आ रहा है सर, तो अकॉर्डिंग टू यूरिन आउटपुट वी हैव टू मॉनिटर फॉर द फ्लूइड। आगे चलो डॉक्टर साहब, और आगे बताओ। सर इसकी आवाज ही नहीं आ रही है। फर्दर क्या करोगे? और सर पेशेंट को IV फ्लूइड्स कितना देते हैं? व्हाट एल्स विल यू डू? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, इसके बाद पीओ रखें। एक आपने IV फ्लूइड दे दिया और क्या करोगे? मल्टीपल एक्स्ट्रा पैंक्रियाटिक कलेक्शन, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। पहले एंटीबायोटिक्स पर देने की जरूरत नहीं है, पहले बाकी चीजें बताइए। अरे शॉक में आपके पास आता है, आपको क्या कंपोनेंट्स हैं और अदर देन IV फ्लूइड्स? Sir, pain management, patient have to keep a nil per oral till patient relieves pain, fluid resuscitation and vitals monitoring, sir. पेन के लिए क्या दे दोगे? पेन मैनेजमेंट बताओ। सर पैथिडीन देंगे 10 to 50 to 100 मिलीग्राम। और 1 मिनट विक्रम। जी सर। मेरी आवाज आ रही है विक्रम तुम्हें? जी सर आ रही है सर। पैथिडीन की डोज क्या होती है?
मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैसे 50 तुमने बोला? फिफ्टी कैसे बोला? ज्यादा बोल 50 सर 50 mg टैबलेट आती है सर। अगर इंजेक्शन देना है तो पैथोडीन का इंजेक्शन देना है तो इट इज 0.1 to 0.3 मिलीग्राम पर केजी पर आवर पर केजी बेसिकली। Why pain management is important in pancreatitis? Dr. Tiwari. पेन में सर हम पेन क्यों सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। मैं कह रहा हूँ गैस्ट्रिक परफोरेशन या अपेंडिसाइटिस कहीं भी पेन मैनेजमेंट में इतना स्ट्रेस नहीं दिया गया है, लेकिन पैनकेटाइटिस में इतना स्ट्रेस क्यों दिया गया है? Why there is so much stress on pain management? सर क्योंकि सर पेशेंट में सर रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन है और उसके साथ में सर सीलियक प्लेक्सस है सर, वो इन्वॉल्व होते हैं, पेशेंट को पेन बहुत सीवियर होता है सर, इसलिए सर पेन मैनेजमेंट जरूरी है। क्योंकि जब सर पेशेंट को पेन रहेगा उसकी सर उसकी वजह से पेशेंट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में रहेगा, पल्स हमारे नहीं रहेगा कि पेशेंट का जो पल्स हाई पल्स रेट है वो इन्फेक्शन की वजह से, शॉक की वजह से है या पेन की वजह से, सर इन सब आएगा। अगर इसके बावजूद पेन अगर पल्स रेट हाई रहता है तो वी कैन सस्पेक्ट दैट पेशेंट इज गोइंग इन फेलियर और सिस्टमिक सर्स और सेप्सिस सर, इसलिए दूसरा सर कुछ पेन किलर्स लाइक पेशेंट को दिस अपेंडिसाइटिस है, व्हाट शुड यू डू? उसमें नहीं जा सकता, उसमें क्यों नहीं देते हैं पेन किलर? इफ यू सस्पेक्ट इट इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस, क्यों नहीं देते हैं उसमें पेन किलर? क्यों नहीं देते हैं सर? वहाँ पे अगर अपेंडिसाइटिस में सर इसलिए नहीं देते, अगर वहाँ पे पेन सबसाइड हो गया तो सर सिम्टम्स उसके कम हो जाएंगे। अगर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो सर सिम्टम्स कम हो जाएंगे, फिर हम उसको Appendicitis is progressive infective disease. Sir, appendicitis is progressive. बताइए क्यों नहीं देते हैं अपेंडिसाइटिस में पेन किलर? नॉर्मली वी डोंट एडवाइज गिविंग पेन किलर्स। साक्षी बोलो, कौन सर पूछ रहे हैं? साक्षी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑन है सर, माइक सर नहीं आता। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। माइक को अपने के पास बताइए, पेन किलर नॉर्मली क्यों नहीं देते हम? व्हाई डोंट वी गिव एनी पेन किलर इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस? सर एक्यूट अपेंडिसाइटिस परफोरेट कर सकता है सर। बोलने दे भाई इनको, बाकी लोगों को बोलने दे तिवारी, बाकी लोगों को बोलने दे भाई, इनको भी एग्जाम देना है। विष्णु बताओ, आप बताओ क्यों नहीं देते हैं पेन किलर्स नॉर्मली इन दिस? even in infective progressive disease diseases also. Yeah, it is infective progressive disease. It so masks the disease. Sir, mask the disease, mask the pain, mask the symptoms. कौन बोल रहा है? Mask the symptoms. Yes sir. Sir सुनील कौन बोल रहा है? सुनील सिंह सर। मतलब अगर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, यू सस्पेक्ट इट and if you give only pain killer, it will mask the symptom, उसका पेन खत्म हो जाएगा, he will forget about the disease, but at the same time this will continue to progress and he can present with perforation. Yes sir. So until unless patient is in the hospital
hospital and you have regular ultrasound, serial ultrasound estimations and other blood and other reports, and you feel that a patient can be treated at home, so it is better to avoid painkillers and ask the patient to report to the hospital immediately as and when there is increase in the severity of the pain. Similarly, you don't give painkillers even in this duodenal ulcer. It can convert a simple duodenal ulcer into a perforation. And patient has a silent perforation. We have seen so many patients who had arthritis, they were on painkillers and they presented in perforation. और क्या करोगे? How will you further? और क्या करोगे? How will you manage it? Then we will give sir oxygen. कौन बोल रहा है? Sir Vikram. हाँ जी विक्रम जी बोलिए. Sir, first of all, as patient comes, हम shock manage करेंगे. Then we will put the RT and then we will control the pain, and then we will go for oxygen. And अगर इसी बीच में सर अगर ऑक्सीजन, क्योंकि it will further elicit the pancreatitis, and then electrolyte balance and serum calcium का ये सर पूरा balance हम देखेंगे सर, करेक्ट करेंगे. अच्छा, ECG कराना चाहिए कि नहीं पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट में? कराना चाहिए सर. नहीं, डॉक्टर विक्रम बताएं, ECG is indicated or not? सर वैसे अगर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें टेंडरनेस नहीं मिलेगी हमको एपिगैस्ट्रियम रीजन में. तो नहीं, टेंडरनेस मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती? यस, तो सर फिर कराना चाहिए. Sir, in case of acute pancreatitis, there will be characteristic change in ECG. There will be tall T. Sir, characteristic ECG changes होते हैं सर acute pancreatitis में सर. ठीक है, चलो विक्रम आगे चलो. मायोकार्डियल डिफ्रेक्शन फैक्टर भी रिलीज करता है पैनक्रेटाइटिस. ठीक है, आगे चलो. सर और सर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड सीरम कैल्शियम and then antibiotics. If there is an infection, then we will go for the antibiotics. Otherwise, some says that prophylactically we can also give the cefoperazone, and then we will see the patient. And if it is getting stable and for the next 48 hours, and if it is not getting stable, then we will think about the CECT, and then we will plan accordingly, sir. When you will introduce antibiotic, on what parameter you will decide to give antibiotic? Sir, if there is an infection in the pancreas, how you will know there is infection? Sir, in CT, sir, there will be a gas will be there. Okay. Not always. So fever, increased WBC count, yes. And fever, increased WBC count is continuously increasing. Okay. तो सर्स में अगर वेरिएशन आ रहा है, फीवर आ रहा है, TLC, CT में एयर आ रही है, ये सारी सब चीजें पेशेंट डेटोरेट कर रहा है, और CT में अगर नेक्रोसिस पहले से ही इंप्रेशन में दिया हुआ है, देन नेक्रोसिस में सिर्फ प्रोफाइलेक्टिक स्टार्ट करते हैं अगर बाकी सिम्टम साइन नहीं है तो. ओके, और क्या करोगे? We will investigate to look after other causes of etiology for acute pancreatitis. So we'll do ultrasound also to look of is there any stone in gallbladder or CBD is dilated. We'll do LFT to look that is there any feature suggestive of CBD obstruction at the distal end. अच्छा, अगर CBD में स्टोन है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अभी क्या करोगे? Sir, ERCP within 72 hours of admission, sir. If suspected gallstone, sir. अगर पेशेंट को सर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के फीचर्स हैं
So sir, we'll try to put stent through ERCP, and when patient stabilize in the same settings, we will do laparoscopic cholecystectomy in the same settings, the same hospitalization, sir. After Suppose there patient is mild symptomatically gets pancreatitis, improved, sir. mild pancreatitis, moderate or severe? अब बताओ, mild pancreatitis with gallstone, moderate pancreatitis with gallstone, severe pancreatitis with gallstone. In case of mild pancreatitis, we'll first manage patient for acute pancreatitis. When patient gets symptomatically improved, then before discharging patient, we'll do lap cholecystectomy. In case of severe, sir, if there is obstruction in CVD, we will put ERCP, we will put stent through ERCP and manage only acute pancreatitis. And we will call for cholecystectomy after 8 weeks, 6 to 8 weeks, sir. And in moderate case, sir, depends on patient condition, sir. अगर पेशेंट में ARDS डेवलप हो रहा है तो क्या करोगे? ARDS is a very known and dreaded complication of acute pancreatitis. And for that, we will start steroids, sir. And steroids, high antibiotic, we will start MBPenam. Oxygen support. ARDS में ऑक्सीजन सपोर्ट किस फॉर्म में दोगे? So bypass. We'll give non-invasive ventilation if patient is not. Okay. Then if there is hypocalcemia, then what you will do? Dr. Vikram? And then we will give the calcium correction, sir. सर कैल्शियम करेक्ट करेंगे सर उसका कैसे देते हैं, कैसे करते हैं? सर 1 ampule in 100 ml NS over 20 minutes slowly. 1 ampule 10 ml 10% calcium. 10% calcium gluconate. 10 ml calcium gluconate over 20 minutes. So rule of 10 होता है. 10% and 10 ml over 10 minutes. Suppose you inject this calcium very fast, what will happen? So arrhythmia can happen. Cardiac arrhythmia. अरे कैल्शियम में कोई डोज भी तो होती होगी या कुछ डोज होती नहीं है, बस सब ऐसे ही एम्पूल ही लगा देते हैं. नहीं बता दिया सर इन 10 ml. हेलो 10% 10 ml इन. हेलो डॉक्टर विक्रम जी सर. कोई डोज भी तो होती होगी भाई. हाँ सर 1 ampule of 10 ml सर. अरे डोज कितना है, कोई मिलीग्राम का हिसाब है? नहीं, करेक्शन कैसे करोगे? कितना कैल्शियम कम है उसका तो हिसाब देखना पड़ेगा. कुछ नहीं देखना, बस ऐसे ही एक एम्पूल लगा दोगे. व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम? नॉर्मल वैल्यू क्या है? 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक सर नॉर्मल रहता है. 8 तो 5 का भी वही करेक्शन है और 6 का भी 7 का भी वही करेक्शन है. कुछ तो हिसाब होगा नहीं. और दूसरी चीज मुझे ये बताओ, ये जो पेन किलर्स होते हैं अपेंडिसाइटिस में, क्या तुम लोगों ने कभी दिए हैं या दिए ही नहीं है? बिल्कुल देने ही नहीं है. और देने हैं तो कब देने हैं? In hospitalized patient. Have you ever given? तुम लोगों ने तो खूब लिखे होंगे पेन किलर अपेंडिसाइटिस में. ऐसा थोड़ा ना लिखे ही नहीं है. Sir, once the diagnosis is confirmed, then we can give painkiller. Yes. After confirming the diagnosis, you can give, but you have to monitor. Sedative नहीं देने हैं, anti-inflammatory की तरह पेन किलर दे सकते हो. तो how will you see that patient is not going into perforation? कैसे देखोगे? पेन किलर तो दे दिया, कोई तो तरीका होगा ये देखने का कि पेशेंट को परफोरेशन तो नहीं हो रहा है.
Features of peritonitis, tachycardia. Yes. BP. You have to monitor the tachycardia. You have to monitor the abdominal lump or tenderness. By that you will monitor. Okay. First 48 hours you should not give. Try to avoid give. But once the diagnosis is confirmed, जो आते ही पहले ही मरीज इमरजेंसी में आया और धक से पेन किलर ठूक दिए, वो वाली किस्सा नहीं है कि आते ही इमरजेंसी में आपने पेन किलर भी दे दिए, सेडेटिव भी दे दिए, सब कुछ दे दिया और 48 घंटे में जब तक डायग्नोसिस कंफर्म हुई तब तक पेशेंट परफोरेशन में चला गया। ठीक है। तो कैल्शियम की डोज करेक्शन, हाउ विल यू करेक्ट द डोज ऑफ द कैल्शियम? द सेम फार्मूला व्हिच यू यूज फॉर सोडियम पोटेशियम। कितनी डेफिशिएंसी है उसका वेट? हाँ, according to the body weight, you will correct the total dose and then you will give the calcium. It can be given in two methods, either by IV line or by the bolus IV in diluted form or in the drip. Continue करो. अभी follow कैसे करोगे patient को? Because you know it cause many complications. How you will follow this patient? Or when you will start oral, what is the policy? राइल्स ट्यूब पड़े रहने दे 7 दिन 10 दिन या कुछ पॉलिसी है? In pancreatitis, what is the duration of राइल्स ट्यूब एस्पिरेशन? क्या करना चाहिए? सर हमको कंटिन्यूअस एस्पिरेशन उसका करा जाता है, बिकॉज अगर गैस्ट्रिक एससीएल अगर वहां तक पहुंचेगा और कब तक करोगे? Sir, as soon as patient can tolerate enteral feed, we have to start enteral feed, because starting enteral feed is good for patient. Why it is good? Why early enteral feed in pancreatitis is good? That is why it is advised कि 1 दिन 2 दिन से ज्यादा राइल्स ट्यूब मत रखो, निकाल दो. Sir, राइल्स ट्यूब रहने से patient, even there are leads, they say कि even rice tube aspiration may not be at all required. You can avoid it if it is possible, until this patient is profusely vomiting or there are signs of gastric outlet obstruction and all that, then only you should give it, or rather even signs of gastric distension, then only you should put in a rice tube. Otherwise, if you can avoid it, try to avoid it and start enteral feed as early as possible. That is why if we are doing any surgery on pancreas, even necrosectomy or putting in drains, in very severe cases, under proper explanation, then you should at least come out with a jejunostomy, feeding jejunostomy, so that you can start feeding patient through that jejunal tube. Feeding jejunostomy. हाँ जी, बताइए आगे. There is one more thing, that अगर आपके पास वो लंबा सा फ्रेकास ट्यूब है, that is a long tube, so it can be guided through the endoscope into the jejunum, and you can start even simultaneously. You can have this as soon as the peristalsis has returned. So there is a double lumen tube. One will be open. One will open in a gastrium and another will be open in jejunum. Through the gastrium, we can aspirate whatever the gastric content, while through the jejunum one, we can feed patients. Yeah, but that has to be done once the peristaltic activity is there and you are able to hear good bowel sounds. Number one. Number two, what are complications of pancreatitis? बताइए. सर पैनक्रेटिक सर एब्सिस में फॉर्म एंड pseudocyst may form, sir,
and it may force from the fistula with wait. पहले आपने बताया pancreatic abscess. Yes, साथ बताइए how you manage it. Sir, if abscess is there, then we have to drain it, sir. Exploratory laparotomy हमको करके सर इसको drain करके, and then we have to put that chain zipper so that we can need to explore it again. No. We have to do CT guided. Can't you do peritoneal guided or can't you do laparoscopic? जितना minimal invasive procedure हो उतना better है, rather than giving a big incision which will not heal and get converted into. CT guided percutaneous drainage, tube drainage will be better. Yes, and if that is possible, you can do that. If that is not possible, you can even go for a laparoscopy and do necrosectomy also. That is one. What else? Pleural effusion may happen, or it may form the fistula with lungs. And अरे वो तो बात की बात रही यार, वो और बताओ ना ये. दूसरा आपने कहा और क्या हो सकता है इसमें? एक आपने कहा ये एब्सेस, acute fluid collection हो सकता है, पहले acute fluid collection हो सकता है, then it can get converted into an abscess. That means it has already got infected. जब infected हो तो once you put in a CT guided needle, that will be diagnostic as well as therapeutic also. ये हो गया. विक्रम. Yes sir. ये तुमने कहा था कि इसमें पैनक्रियाटिक एब्सेस में वी हैव टू डू लेप्रोटमी और डबल बैरल ट्यूब डालना है, सम ड्रेनेज करना है, तो अभी राइट नाउ क्या प्रोटोकॉल क्या है? डच पैनक्रियाटाइटिस स्टडी ग्रुप ने जो कुछ किया था 2010 में, उसकी स्टडी क्या निकली थी? डच पैनक्रियाटाइटिस स्टडी ग्रुप की स्टडी में क्या आया था जो कि सेमेस्टर में दिया हुआ? नहीं पता। डच पैनक्रियाटाइटिस स्टडी ग्रुप 2010 में जो स्टडी हुई थी उसका रिजल्ट क्या आया था? क्या आप करते हैं लेप्रोटमी? सर नहीं पता सर। हाँ, उन्होंने कहा है कि नहीं, लेप्रोटमी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मिनिमम इन्वेजिव, अगर आप मिनिमम इन्वेजिव भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके भी एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम है ओपन की तरह। तो अब तो नहीं करते, कौन कर रहा है अब ओपन लेप्रोटमी? ठीक है, आगे चलो। ये हो गई एक, दिस इज एक्यूट कलेक्शन, उसके बाद इट गेट्स एन इन्फेक्टेड कलेक्शन दैट फॉर्म्स एन एब्सेस. व्हाट एल्स? और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है पैनक्रियाटाइटिस के? Sir, respiratory complication which I told sir, and it may also form sir after 2 weeks sir, a pseudocyst may form around it, around that collection. कितने 2 हफ्ते के बाद? जी सर। और ओके, और 4 से 6 हफ्ते में ये मैच्योर हो जाता है सर। 2 हफ्ते तक अगर ये होता है तो उसको क्या कहते हैं? 2 हफ्ते के बाद क्या कहते हैं? बताइए विष्णु जी, आप बताइए। सर सवाल रिपीट करिएगा सर आप। He said के 2 हफ्ते के बाद it can form a pseudocyst. अगर उससे पहले there is collection, what will you call it? पेरीपेनक्रेटिक कलेक्शन ही कहेंगे। पेरीपेनक्रेटिक कलेक्शन। Acute fluid collection. हाँ। तो आप अच्छा pseudopancreatic cyst है तो how will you manage it? Sir, most of them resolves on its own. Otherwise, we need to do gastropancreatomy. गैस्ट्रोसिस्टोस्टोमी से करते हैं, लेकिन सब कंजर्वेटिवली सर तब करते हैं जब इसका 6 सेंटीमीटर से साइज, जब 6 सेंटीमीटर से साइज सर बड़ा हो जाए सर इसका। और सर रूल ऑफ 6 मैच्योर हो जाए सर, जब इसकी वॉल्स मैच्योर। आपने सिर्फ आफ्टर 6 सेंटीमीटर साइज होगा। व्हाट इज रूल ऑफ 6 वीक? आफ्टर 6 वीक सर। 6 वीक्स 6 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर थिक। 6 मिलीमीटर वॉल थिकनेस। यस, वॉल थिकनेस 6 मिलीमीटर।
तो क्या करते हैं, व्हाट विल इसके क्या सर्जरीज होती हैं? हाँ? चलो विष्णु आप बताओ जल्दी से। सिस्टोगैस्ट्रेक्टमी। तो सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी 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 और सपोज दिस इज इन द हेड में है तो आपका सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी किस रीजन के लिए बेस्ट होती है? दैट इज बॉडी एंड टेल के लिए। सपोज दिस हेड इज में इन है द तो हेड। सर रू एंड वाई। हेड में क्यों रू एंड वाई? कांट वी डू सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी दिस duodenectomy? रू एंड वाई कब करते हैं यूजुअली? is in the head region. जी हाँ जी। We can put stent if it is connected with the pancreatic duct. नहीं वो तो that is for everything. If this pseudo pancreatic cyst is communicating with the pancreatic duct, तो उसमें डालना ही डालना स्टंट। वो मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा हेड में है आपका pseudo pancreatic cyst. It doesn't necessarily mean this is communicating with the duct. Yes. तो depending upon the location, तो आप किसके साथ उसकी एनास्टेमोसिस करोगे? Head is usually in the C of the duodenum, so आप उसको करोगे duodenum के साथ. That is cystoduodenostomy. If it's a large cyst which is overhanging and going into the greater sac also, मतलब extending into the greater sac, even below behind this transverse colon, then it is amenable for good candidate for ruin Y. Cystojejunostomy. आप इसने खुद ही जवाब दे दिया। आप अगर ये कम्युनिकेटिंग है, ये pseudo pancreatic cyst, this is communicating with the ductal system, what will you do? How will you proceed, Vikram? Then in जो सही स्टेंटिंग करेंगे हम। बाकी स्टेंटिंग करके क्या करोगे फिर? स्टेंटिंग क्यों करोगे? ताकि सर ये सिस्ट जो है इसका कंटेंट मतलब निकलता रहे, अदरवाइज इट विल गेट। कहां से निकलेगा? रप्चर कहां से जाएगा? इसका ड्रेनेज होता रहे सिस्ट का। कहां से जाएगा रप्चर? मैं कह रहा हूं ये कम्युनिकेटिंग है। आपने देखा, सीटी किया, यू हैव सीन कि दिस इज अ कम्युनिकेटिंग विद द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। सो व्हाट विल यू डू फर्स्ट? आपने कहा स्टेंट डालेंगे, किस में डालेंगे स्टेंट? साक्षी किसमें स्टेंट डालते हैं? अरे जोर से बोलो, खाना नहीं खाया तुमने? सर हम लोग सूडोसिस्ट में सर अगर कनेक्टिंग और मल्टीपल रहता है तो सर मेन वन क्या सर ERCP करके पैनक्रियाटिक डक्ट में आप स्टेंट डालोगे। हाउ डज इट हेल्प? वही मैं पूछ रहा हूं। आप कहीं पर भी स्टेंट डालते हो, सपोज आपने कॉलेसिस्टेक्टमी की एंड इनएडवर्टेंटली आपने डैमेज किया CBD को, आप क्या करते हो उसको? हाउ डू यू हैंडल इट इफ यू डोंट पिक इट अप ऑन टेबल while doing surgery? आपको नहीं पता चला, बाद में you understand कि आपने CBD को डैमेज किया है and there is leakage of bile. So what do you do? How do you proceed? अगर छोटा है तो आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर रखते हो, put in the drain, keep the drain there for 6 weeks and see if it heal on its own. अगर नहीं होता है तो क्या करते हो फिर? You ask a gastroenterologist to do an ERCP and put in a stent. वो stent क्या करता है? It helps in the healing. Because जो वो लीकेज होता है वो लीकेज नहीं हो जाता, it goes through the path of the least resistance. तो वहां से निकलता है, it helps healing. अगर वो वहीं से रिसकता जाएगा तो वहां healing ही नहीं होगी. So same is the concept of pancreatic duct also. तो कम्युनिकेशन एक किस्म की बंद हो जाएगी। जो ये पैनक्रियाटिक सिस्ट है,
Pseudopancreatic cyst है, it may resolve on its own. If it doesn't resolve, then you can do a drainage procedure. और क्या होती है? What are other complications? आप लोगों को सबको नींद आ रही है, उसकी वजह से मुझे भी नींद आने लगी. So it is better we wind up. लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो. This pandemic is taking a toll on you. आप इसी की वजह से आप आदत खराब हो गई है. या तो आप करोगे कोविड ड्यूटी, नहीं तो सोते रहोगे. चले क्लोज किया जाए. हाँ सर, कुछ मतलब ही नहीं है, ये लोग पढ़ते ही नहीं है. कोई नहीं. रिकरेंस क्या होता है? रिलैप्सिंग रेट और रिकरेंस रेट कितना है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में? डॉक्टर सुनील तिवारी सर. पेशेंट को फॉलो अप में क्या बोलोगे? कितने % में रिकरेंस? हाँ सर अप टू 25 to 30% पे सर पेशेंट रिकरेंस है सर. तो पेशेंट को सर एज सून एज सर पेशेंट को अगर सिमिलर सिम्टम्स आते हैं सर, तो पेशेंट को आके करना है, अल्कोहल से एब्सटीन करना है. अगर पेशेंट को गॉल स्टोन की वजह से है तो हमको कोलेसिस्टेक्टमी करना है. और क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के चांसेस कितने होते हैं? 10% तक सर. ठीक है, तो क्लोज किया आप जाए सब सर. लोग अपनी अटेंड हाँ सर, एक मिनट. आप सब लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में वो डालनी है. डॉक्टर कृतिका सोनी, शी इज बेसिकली मैनेजिंग दिस. उसको सर ये किया है डेलीगेट. शी विल जस्ट बी रिकॉर्डिंग ऑल दिस. Make a soft copy of this. We will have this surgical classes folder जिसमें हम ये सब soft classes रखेंगे along with the attendance. सर फ्राइडे का टॉपिक सर. फ्राइडे का तो टॉपिक ऑलरेडी फिक्स. That is already fixed. उस दिन तो रीना को she has to present that obstructive jaundice. That is overdue for last so many days. I don't see Dr. Reena around here. Yes sir, I'm here sir. Okay sir. आप हो कहीं? यस सर मैं हूँ सर. अच्छा, दिखने रहे थे. तो क्या है, आप फ्राइडे आपको प्रेजेंट करना है ना? यस सर मेरा सेमिनार तैयार है सर, मैं प्रेजेंट करूंगी. बस ठीक है. और मंडे को कौन करेगा? मंडे को साक्षी करेगी सर. साक्षी को करना है केस प्रेजेंटेशन. क्या करोगे साक्षी? केस प्रेजेंटेशन के सेमिनार? नहीं, आप केस प्रेजेंटेशन करो. सेमिनार विल बी प्रेजेंटेड बाय समवन एल्स. हम ऑनलाइन जर्नल्स भी देखना शुरू कर दो. ऑनलाइन जर्नल क्लब भी शुरू कर दो. यस सर, नो? यस सर. आप बताइए ना, जवाब ही नहीं दे रहे हो. तो बोला तो सर केस करूंगी. अरे जोर से बोलो. सारे जीआरटी केस दे रहे हैं तो मैं भी केस ही करूंगी. केस प्रेजेंटेशन करोगे तो मैं उस दिन भेजूंगा आपको कुछ. डिले हो रहे हो बहुत तुम. साक्षी से पूछा जा रहा, आप बोलते ही नहीं हो, ना हंस रहे हो, ना कुछ कर रहे हो. यू हैव अ ब्लैंक फेस. आप घर में हो, यहाँ पर हो? हाँ जी सर. कहाँ पर हो? यहाँ हो कि घर में हो? आर यू ओके साक्षी? एट होम? हाँ जी सर. आर यू ओके? मुरादाबाद में सर, हॉस्टल में हूँ सर. अरे डॉक्टर नितिन पूछ रहे हैं, आर यू ओके? हाँ जी सर. बोला. कहाँ बोला आपने? कुछ दिनों से लग रहा है कि यू सीम टू बी सिक. अब पुराना वाला साक्षी का चेहरा नजर आया इतनी देर बाद. सर शी इज पोस्ट कोविड. वो कहते हैं ना, पोस्ट कोविड इलनेस बड़ी खतरनाक होती है. हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ सर. पुराना वाला चेहरा अब नजर आया है. इनको पोस्ट कोविड ड्यूटी ये चल रहा है, सिम्टम्स. That's why I'm asking, are you okay? चलो मैं भेजूंगा. किस पर करेंगे सर आप? शुड वी चेंज द टॉपिक? अब ये हो गया हिपेटोबिलियरी सिस्टम, पेनक्रियास तो हो गया.
हाँ तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, इसको साक्षी को मैं दे दूंगा केस सिनेरियो रिगार्डिंग व्हाट? पैनक्रियाज हो गया, हेपेटोबिलियरी हो गया, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो गया। हाँ ब्रेस्ट नहीं, की तरफ चले जाइए। पैनक्रियाज में अभी हमने वी हैव डिस्कस ऑब्स्ट्रक्टिव पैनक्रियाटिक मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी नहीं किया है, लेकिन अभी वैसे तो पैनक्रियाटाइटिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो तो हो गया, तो शुड वी गो टू ब्रेस्ट? हाँ ब्रेस्ट पे चले जाए। चलो साक्षी मैं भेज दूंगा ब्रेस्ट पर। ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी ना? हाँ ठीक है, ब्रेस्ट लंप पर भेजेंगे तो विल डिस्कस दैट। ठीक है साक्षी? अरे जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज बिल्कुल ही वैसे ही धीमी होती है, इस टाइम ज्यादा ही धीमी हो रही है। चलो ठीक है सर, वी क्लोज इट। ओके ओके बाय। चलो ओके, थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे एवरीबॉडी। बट लेकिन एक चीज है, पढ़ा करो। फ्राइडे को वी हैव ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मंडे को इट विल बी रिगार्डिंग ब्रेस्ट। Read all these things so that you can participate in this discussion very intensely and with great enthusiasm. Otherwise it is as good as you are seeing a movie लगा दी, अपना ये बंद कर दिया, फोटोस होते रहे, तो क्या मतलब है उसका? जी सर। अपनी अटेंडेंस सब मार्क करना, because that has to go to the principal's office. हाँ जी सर। ओके सर, कैसे मार्क करते हैं सर प्रेजेंट? चैट में कादिर जी, ये साइड लोअर राइट कॉर्नर में मोर होगा, वहां पे चैट होगा, चैट में टाइप करना है। चैट में क्या टाइप करूं? बस आप अपना नाम और प्रेजेंट लिखिए। अपना नाम और अपना ये डिजिग्नेशन एंड प्रेजेंट, जैसे लिखा है विक्रम JR3 प्रेजेंट, ऐसे आप लिखोगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। जी सर। बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड, ये डॉक्टर कृतिका सोनी को हमने दिया है। She will be recording all the attendance along with making a soft copy in a folder regarding surgical discussions and classes, Zoom classes, और वो फिर बाद में वो as it is it goes to the principal's office. Okay sir. ठीक है? Thank you sir. Okay. जी सर। Okay, all the best. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Okay, bye. Okay, good luck. Thank you. Thank you sir. Thank you. जी विक्रम जी। हाँ भैया। चलिए हो गया। हाँ हो गया। तो कहाँ भग गए? चलो ठीक हाँ है। यही हूँ। और लोग भग गए। चलो मैं फोन करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सबको फोन